हेलो 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 बेटा, आवाज आ रही है सभी को? हेलो, Yes, am I audible? yes, sir. Okay, so good afternoon to all. And okay, so I just want to brief you regarding lab. Uh, one turn has already been done. This is your second turn of this particular lab, that is CAD of Electronics lab with the code KEC 653. Clear? And in the first turn, we have discussed the objectives. Clear? And you can say what are the experiments we may go through here into the lab, and few of the experiments we have discussed, while the rest one we have not covered. So actually the lab activity has not been done till date. So now if you go to your classroom, you may see I have shared you the lab manual as well. Okay, so am I audible now properly? Yes, sir. Okay, so what I am saying, if you go through your classroom, Google Classroom, and you will see that I have shared you the lab manual. Clear? So as you all, I think you all are not aware with this, that the lab is exactly 2 hours, so 2 hours of duration. So after discussion regarding experiment, you all need to be done your write up at the same time. Clear? Because the margin is there, time margin is there, so you need to complete your write up also in your handwritten work. Yeah. So you may get the lab manual by the, you can say, which I have shared already in the Google Classroom. You may get the from there, and then you need to do that at that time. Clear? Within 2 hours of lab. Then your viva will also be there, so your evaluation will be there. Clear? So as your physical lab was conducting into the college for 2 hours, and your all works to get completed within 2 hours, so that's the things that will follow into this online mode also. Clear? So you need to be take care of that. मेरी बात समझ में आ गई सभी को? What I have told? हेलो, जो भी मैंने बताया, all of you have got or not? Yes, sir. ठीक है, सभी लोग को राइट अप लिखना है इसका। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल समझाऊंगा, उसके बाद you will get some margin for the write up work, and in your own handwriting you need to have the A4 sheet. Clear? On which you will just write that. हाँ सर ग्राफ प्लॉटिंग कैसे होगी? ग्राफ तो है नहीं। हाँ बेटा, वो चीज है, ग्राफ प्लॉटिंग नहीं हो पाएगी आई थिंक ऑन योर इशू, क्योंकि actually we don't have we don't have physical lab availability, also we don't have virtual lab link right now on PSpice. Clear? So either you need to install the PSpice application on your laptops, then you may do this. As it is not I think if it is not possible at your end to install that, then uh, initially you will write the what the manual, then
you may draw the plots as per the requirement. ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग if simulation results are not available, as I also know, so no issue. देखते हैं, पहले आप लोग अपना राइट अप कंप्लीट करेंगे, ठीक है, एंड जो भी इसके रेस्पेक्टिव प्रोटो उसका रेलिवेंट ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ एक होता है ट्रेस तो आप लेते हैं मॉनिटर से, तो आई थिंक ट्रेस विदाउट फिजिकल अवेलेबिलिटी या फिर आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो तभी आप ट्रेस ले सकते हैं, ठीक है, बट सिमुलेशन रिजल्ट तभी आपको मिल सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ नहीं है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन फिलहाल आपको जो उसमें मैनुअल में जितना पोर्शन है वो आपको अपनी फाइल में नोट करना है। क्लियर? जो भी डायग्राम्स है वो भी ड्रॉ करने होंगे बाई हैंड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ठीक है, यस और बाकी कुछ अपडेट होगा वो नेक्स्ट लैब से पहले तक हम आपको बताएंगे जो भी कुछ है, ठीक है। फिलहाल अभी आपको आज के लिए इतना करना होगा, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। लास्ट टाइम मैं आपको एक बार जरा आप लोग विजिट कर सकते हैं गूगल क्लासरूम पे, अपनी लैब मैनुअल देख सकते हैं। सो मैं भी आपको शेयर करके दिखा देता हूँ एक बार, जस्ट वेट, आई एम शेयरिंग यू द फाइल। दिख रहा है बेटा ये शेयर किया जो फाइल? हेलो, नो अभी नहीं सर। दिख रहा है? अच्छा, नो सर। ओके, सो दिस इज योर लैब मैनुअल। क्लियर? अभी दिख रहा है? इज इट विजिबल? Yes, sir. यस सर। ओके, सो दिस इज योर लैब मैनुअल। ठीक है, ये कैड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स लैब KC 653। इसमें देखिए यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से स्टार्ट करना है। यू मैन स्किप दिस पार्ट। क्लियर? सो ये आपका इंडेक्स टेबल है, आप देख सकते हैं योर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इज देयर। क्लियर? सो दैट इज ट्रांजिएंट एंड DC एनालिसिस ऑफ BJT इन्वर्टर। क्लियर? सो ये आपको पेज नंबर 6 to 8 यहाँ पे नीचे मिल जाएगा। आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने सेम आपको शेयर किया हुआ है गूगल क्लासरूम से, ठीक है ना, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। ये दिख रहा है सभी को? एक्सपेरिमेंट नंबर 1, यस सर। ठीक है। तो ये आपके देखिए ऑब्जेक्ट है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट जनरली PSpice वी आर यूजिंग और OrCAD। क्लियर? सो इसके बाद सर्किट डायग्राम है, ये आप देख सकते हैं, दिस इज द बेसिक सर्किट डायग्राम ऑफ BJT इन्वर्टर। क्लियर? इसकी इसकी जो है एक्सप्लेनेशन मैंने आपको लास्ट टर्म पे की थी। यू ऑल आर प्रेजेंट इन द लास्ट टर्म, सो आपको पता होगा मैंने एक्सप्लेनेशन इसका दिया था BJT इन्वर्टर का, कैसे ये वर्क करता है। इवन आई हैव इवन आई हैव टोल्ड यू द प्रोग्रामिंग पार्ट आल्सो। क्लियर? कि कैसे इसकी प्रोग्रामिंग कैसे ये वर्क कर रहा है, कोडिंग के बारे में हमने आपको बताया था, कैसे कैसे हम PSpice पे। देखिए दो मेथड होता है, ठीक है। एक तो होता है कि ये जो आपकी सर्किट फॉर्म्ड है, इस सर्किट, इसको आप कोडिंग के थ्रू भी इस सर्किट को डेवलप कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको कुछ नहीं करना होगा, ये कोड वर्ड टाइप करने होंगे और वो ऑटोमेटिक सर्किट फ्रेम हो जाती है, ठीक है। और ये कोड वर्ड अगर आपके सही हैं रिगार्डिंग दिस सर्किट, ठीक है, तो आपका आउटपुट भी सही आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हेलो हेलो, आवाज आ रही है बेटा सभी को? यस सर। यस सर। ओके, देखिए मैं किसी से भी रैंडमली कुछ भी पूछ सकता हूँ बीच में, ठीक है। अगर आप ज्वाइन करने के बाद लीव कर देते हैं, इधर उधर चले जाएंगे, तो देन यू विल मार्क एज एब्सेंट एंड इफ यू विल नॉट रिस्पॉन्ड, ठीक है।
तो जिससे भी मैं चाहूंगा, जब भी चाहूंगा कुछ भी पूछ सकता हूँ। सो योर अटेंशन शुड बी देयर, ठीक है, जब तक लैब चल रही है योर अटेंशन शुड बी देयर। हाँ देखिए, मैं क्या कह रहा था कि ये जो दो तरीके से हम इसको सिमुलेट कर सकते हैं। एक तो तरीका होता है कि जैसे आप देख सकते होंगे कि ये सर्किट बनी हुई है बीजेटी की, सिंपली बीजेटी इन्वर्टर की सर्किट है, क्लियर। यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं हम, एक इनपुट रेजिस्टेंस लगा हुआ है बेस टर्मिनल पे, जिसको हम लोग बेस रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, क्लियर। दिस इज योर एनपीएन ट्रांजिस्टर बेसिकली, एंड दिस इज योर कलेक्टर रेजिस्टेंस, दिस इज द सप्लाई वोल्टेज वीसीसी, क्लियर। यहाँ से हम कलेक्टर टर्मिनल से आउटपुट ले रहे हैं, तो दिस इज वी आउट। इन जनरल हम लोग कलेक्टर से ही आउटपुट लेते हैं, जितनी भी एम्पलीफायर सर्किट्स होती हैं उसमें भी आउटपुट कलेक्टर से ही लिया जाता है, या सभी को पता ही होगा, ठीक है। एंड दिस इज योर एमिटर टर्मिनल, एमिटर टर्मिनल इज ग्राउंड। बेसिकली कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन सबसे सुटेबल और प्रेफरेबल होता है, इसलिए कॉमन एमिटर को ही यूज किया जाता है मोस्टली, क्लियर। और आप कॉमन बेस को भी यूज कर सकते हैं, बट कॉमन एमिटर इज सुटेबल इन ऑल थ्री कॉन्फ़िगरेशन, क्लियर। सो यहाँ इनपुट दे रहे हैं, ये बेस टर्मिनल है, ये आपका कलेक्टर टर्मिनल है, ये एमिटर टर्मिनल है। अब जैसे चूंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो कोडिंग पार्ट है विच आई एम टॉकिंग अबाउट, क्लियर। एक बार मैं फिर से थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, जिन लोगों ने लास्ट टर्न पे अटेंड नहीं किया था उनको भी मैं एक बार बता देता हूँ, क्लियर। जैसे इस कोडिंग के थ्रू हम, मतलब जैसे पी स्पाइस पे अगर हम ये कोडिंग टाइप कर दें, ठीक है, तो अगर ये कोडिंग सही हमने टाइप किया तो ये सर्किट ऑटोमेटिक फ्रेम हो जाएगी इनबिल्ट, क्लियर। इसका मतलब है कि ये कोडिंग आपकी मैच कर रही है उस सर्किट से जो आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, ठीक है। तो कोडिंग पार्ट से आप सर्किट इम्प्लीमेंट करा सकते हैं, या सर्किट को ही आप बना सकते हैं डायरेक्टली। आप उस पर सर्किट में ट्रांजिस्टर लगाइए, रजिस्टर लगाइए, ठीक है, इनपुट वोल्टेज कनेक्ट करिए, सप्लाई वोल्टेज कनेक्ट करिए, आउटपुट पोर्ट कनेक्ट करिए, ग्राउंड लगाइए, आप ये भी काम कर सकते हैं, ठीक है। सर्किट से सिमुलेट कर सकते हो, बना के सर्किट बनाओ और फिर उसको सिमुलेट करो, तो डिजाइन पार्ट हो गया। या आप कोडिंग से डायरेक्टली कोडिंग इनपुट देके आप सीधे आउटपुट ले सकते हैं, फिर कोडिंग इज करेक्ट, ठीक है। तो जैसे अभी यहाँ पे है, आप मतलब कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। यू हैव फ्लेक्सिबिलिटी टू डू एनीथिंग, क्लियर। सो जैसे कि यहाँ पे अभी फिलहाल कोडिंग के थ्रू हम सर्किट डेवलप कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है, वाइस वर्सा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम बीजेटी इन्वर्टर बना रहे हैं यूजिंग स्टेप इनपुट, क्लियर। स्टेप मीन्स यू आर गिविंग इनपुट एज ए 0 और 1, क्लियर। सो यू कैन सी, पहले हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं, सप्लाई वोल्टेज से। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी पी स्पाइस में हम कोडिंग पार्ट अपीयर होते हैं, ठीक है, इसका हमने लिंक भी भेजा था, आई थिंक वीडियो लिंक आप लोग को मिला कि नहीं मिला, मिल गया होगा ना, क्लासरूम पे मैंने शेयर किया था। We have two videos regarding this simulation part, DC analysis and transient analysis. Have you visited the link? Hello, class. Have you all visited the link or not? Hello, hello. नहीं सर, अभी नहीं विजिट किया है। अभी नहीं विजिट किया है? हाँ तो बेटा विजिट करिए लिंक पे, ठीक है। अभी हम आपको दिखाएंगे, वो यूट्यूब की वीडियो है जो सिमुलेशन कैसे हो रहा है वो हम आपको शो करेंगे। वैसे आपको विजिट करना चाहिए था, अगर नहीं किया तो आप करिए, ठीक है। तो देखिए इसमें ठीक है पहले सर। तो हम क्या, हाँ पहले एग्जैक्टली होता क्या है कि जैसे ये सर्किट है, ठीक है, इस पे हम नोड्स बना देते हैं। नोड का मतलब नंबरिंग दे देंगे, जैसे सप्लाई वोल्टेज है तो यहाँ मान लीजिए हमने एक नंबर दे दिया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 तक हम जितने भी नोड्स हमारे, ये ध्यान रखिएगा सारे के सारे एलिमेंट्स आपके क्या होने चाहिए, काउंट होने चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, नंबरिंग देते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल इनपुट से स्टार्ट करते हैं, यहाँ हमने 1 दे दिया, यहाँ 2 दे दिया, ठीक है, इस पॉइंट पर 2 दे दिया, यहाँ 1 दे दिया, तो 1 और 2 के बीच में हमारा क्या कनेक्ट हो गया, बेस रेजिस्टेंस। आर यू गेटिंग? ऐसे ही यहाँ सप्लाई वोल्टेज पे हमने 3 दे दिया ऊपर की तरफ, यहाँ पे 4 दे दिया,
3 और 4 के बीच में क्या कनेक्टेड है, आरसी कनेक्टेड, कलेक्टर रेजिस्टेंस, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 4 है, यहाँ 5 दे दी, ये आपका ऑलरेडी डिफाइंड है, एक नीचे हमने एक वो दे दिया नंबरिंग, ठीक है। तो आपका इससे आपका पूरा ट्रांजिस्टर कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम नोडिंग क्यों करते हैं, नोड देने का मतलब ये होता है कि आपको नोड से ही असाइन होगा, नोड से ही वो सॉफ्टवेयर डिफाइन करेगा कि कौन सा कंपोनेंट सर्किट का कहाँ लगा हुआ है, किस किस नोड के बीच में लगा हुआ है। ये एक मेथड होता है पीस्पाइस में कोडिंग का, ठीक है। मीन्स यू कैन सिमुलेट द सर्किट विद द हेल्प ऑफ कोडिंग बाय असाइनिंग द नोड्स फॉर द रेस्पेक्टिव एलिमेंट, क्लियर। सो देख सकते हैं आप, ऐसे ही यहाँ पे भी किया गया है। पहले तो हमने लिख लिया बीजेटी स्टेप इनपुट, ये हमने एक इंस्ट्रक्शन दे दिया जो हम करने जा रहे हैं, स्टेप इनपुट दे रहे हैं बीजेपी पे, ठीक है, और उसकी एनालिसिस कर रहे हैं। तो देखिए पहले हमने क्या किया, वीसीसी 1 to 0 के बीच में कनेक्टेड है, वीसीसी 1 to 0। तो देखिए वीसीसी आपका कहाँ है, ये है, ठीक है, ये आपका वीसीसी है। इसको हमने 1 नोड दिया हुआ है ऊपर वाले को, सबसे वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज है, इसी से पूरी सर्किट आपकी ऑपरेट हो रही है। तो वीसीसी से हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसको हमने 1 नोड दे दिया, तो ये 1 हो गया, और ये कहाँ तक जाएगा, 1 से लेके 0 तक, मतलब पूरी सप्लाई आपकी इस पूरे सर्किट में फ्लो करेगी। तो मतलब 1 से लेके 0 तक, 0 मतलब ग्राउंड तक, पूरा ये सप्लाई हमारा सर्किट में जा रहा है। तो अब 1 से 0 पूरा नोड डिफाइन करेंगे, ठीक है। 1 हो गया सप्लाई नोड 1, 0 हो गया ग्राउंड। तो 1 to 0 क्या दे रहे हैं आप, डीसी सप्लाई दे रहे हैं, कितने वोल्टेज की, 5 वोल्ट की, क्योंकि एज ए इन्वर्टर काम कर रहा है। तो इन्वर्टर का मतलब ही होता है इनपुट अगर 0 देंगे तो आउटपुट हाई मिलेगा, इनपुट हाई देंगे तो आउटपुट लो मिलेगा। इज इट क्लियर। कोई भी इन्वर्टर हो, बीजेटी से बना रहे हैं, मॉसफेट से बना रहे हैं, किसी से भी बना रहे हैं, कॉन्सेप्ट लेकिन इन्वर्टर का वही है, इनपुट हाई दोगे तो आउटपुट लो मिलेगा, इनपुट लो दोगे तो आउटपुट हाई मिलेगा, ठीक है। तो पहले तो हमने देखिए सप्लाई वोल्टेज को डिफाइन कर दिया विद इन नोड्स, ये हमारा सप्लाई वोल्टेज किस किस नोड के बीच में कनेक्ट है, और कितने वोल्टेज का कनेक्ट है, और डीसी है या एसी है, फिर हम लोग डीसी सप्लाई जनरली देते हैं, ठीक है। इसके बाद जब ये डिफाइन हो गया तो फिर इनपुट वोल्टेज को हमने डिफाइन कर लिया कि इनपुट हमारा कहाँ कहाँ कनेक्टेड है। आप देख सकते हैं इनपुट ये रहा आपका, इनपुट कहाँ कनेक्ट है, इसको हमने 1 बोला था, यहाँ आपका 2 होगा, ठीक है, ये आपका 0 हो गया, इसको हमने 3 दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका 3 नोड है। तो 3 से लेके 0 के बीच में इनपुट कनेक्टेड है, ये हो गया 3, ये आपका 0, ये ग्राउंड टर्मिनल है। तो 3 से 0 के बीच में हमारा इनपुट कनेक्टेड है, ठीक है। और इसकी हमने रेटिंग भी दी हुई है, क्योंकि देखिए 0 नैनो सेकेंड पे मतलब टाइम पीरियड भी फिक्स कर रहे हैं हम, डिले। तो देखिए 0 नैनो सेकेंड पे 0 वोल्टेज है, 5 नैनो सेकेंड पे 5 वोल्ट है, क्या, इनपुट। इनपुट की वैल्यू भी हम दे रहे हैं कि हम कितने 0 से 5 वोल्ट तक ही जा सकते हैं, क्योंकि डीसी वोल्टेज जो मैक्सिमम सप्लाई है वो 5 वोल्ट की है, 5 से वोल्ट से ज्यादा इनपुट आप दे ही नहीं सकते, ठीक है। मिनिमम 0 दे सकते हैं, मैक्सिमम 5 दे सकते हैं, ठीक है। तो कितने डिले पे, जब 0 नैनो सेकेंड का डिले है तो 0 वोल्टेज है, जब डिले हमारा 5 नैनो सेकेंड का है तो 5 वोल्ट है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे सेट कर दिया इनपुट वोल्टेज को, ठीक है। 0 to 5 वोल्ट हमारा इनपुट वोल्टेज वेरी करेगा, और 3 to 0 के बीच में कनेक्टेड है। ये नोड आपका 3 है, यहाँ पे 0 है, ग्राउंड 3 से 0 के बीच, ठीक है। इसके बाद आते हैं बेस रेजिस्टेंस पे। बेस रेजिस्टेंस आपने कहाँ लगाया हुआ है, यहाँ लगाया हुआ है, देख सकते हैं आप। ये भी कहाँ से कनेक्ट होगा, ये चूंकि हमने 3 बोला है तो दिस इज योर 3 टर्मिनल। तो इसको आई एम जस्ट ट्राई टू राइट दिस, जिससे आपको ये कंफ्यूजन ना रहे। एक मिनट, जस्ट वेट। ये आपको समझ में आना जरूरी है, अगर समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत रहेगी, ठीक है। व्हाट आई वाज टू व्हाट आई वांट टू से एग्जैक्टली, देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए, ओके, हाँ, तो मैं यहाँ पे था, मैंने बोला ये आपका नोड 1 है, इसको हमने नोड 1 कर दिया। एक नोड यहाँ बनेगा, ये हमारा ग्राउंड हो गया, दैट इज 0, ठीक है। ग्राउंड का मतलब जो नीचे 0 हो गया, इसको हमने 3 बोला है, ठीक है। ये हमारा 2 होना चाहिए, इसको भी देख लेते हैं हम कोडिंग के थ्रू, ठीक है। तो ये हमारा बेस रेजिस्टेंस जो है 3 4 के बीच में कनेक्टेड है, 3 है, देखिए
ये हमारा 3 हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारा 4th नोड होगा। 3 और 4th के बीच में आरबी कनेक्टेड है। कितनी वैल्यू है इसकी? आरबी की वैल्यू है 10 किलो ओम। ये आपका वैल्यू भी बताना पड़ेगा, आप कितने वैल्यू का लगा रहे हैं, ठीक है ना। 10 किलो ओम का हमने रजिस्टर कनेक्ट कर दिया है 3 और 4 के बीच में। देन वी कम टू द कलेक्टर रेजिस्टेंस। कलेक्टर रेजिस्टेंस आपका ये रहा, ठीक है। आरसी की अगर हम बात करें, ये देखिए ये आरसी है। आरसी की अगर हम बात करें तो आरसी कहाँ लगा हुआ है? 1 और ये तो आपका 1 हो गया। 1 और कहाँ पे लगा हुआ? 2 के 1 2 के बीच में। देखिए ये 1 है, इसको मैंने 2 बोला था। दिस इज योर 2। 1 और 2 के बीच में कनेक्टेड हो। कितनी वैल्यू का है? 1 किलो ओम का है। इसकी भी वैल्यू आपको पता है, दिस इज व्हाट 1 किलो ओम, ठीक है। इसके बाद आते हैं सीएल। सीएल कह सकते हैं आप कैपेसिटेंस है, जो कि हमने यहाँ शो नहीं किया है। लोड पे कैपेसिटेंस भी लगा होता है, जैसे आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं लोड पे। लोड पे यहाँ पे हम एक कैपेसिटेंस अटैच करते हैं। इसकी वैल्यू जो है ये आपको गिवन है। ये एक्चुअली स्टोरेज के लिए होता है, क्योंकि आउटपुट पे हमको चार्ज जो भी हमें आउटपुट मिलता है उसको हम स्टोर करता है। स्टोर भी तो होगा आउटपुट, तो स्टोर करने के लिए एक आउटपुट पे कैपेसिटेंस भी आप लगाते हैं। जैसे अब यहाँ पे जो सीएल हमने लगाया हुआ है, ठीक है, इसकी हमने जो वैल्यू दे रखी है वो 1 पिको फैरड है। यहाँ लिखा भी हुआ है नीचे 1 पिको फैरड, आप देख सकते हैं, ठीक है। 1 पिको फैरड। तो किसके किसके बीच में कनेक्टेड है? ये 2 0 के बीच में कनेक्टेड है, ठीक है। तो 2 कहाँ हो गया? 2 तो आपका ये हो गया, और 0 कहाँ हो गया? ये रेफरेंस वोल्टेज हो गया। 2 इज योर आउटपुट लाइन। 2 और 0 के बीच में आपका 1 पिको फैरड का कैपेसिटर कनेक्टेड है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं, ट्रांजिस्टर को भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि Q1 Q एग्जैक्टली रिप्रेजेंट योर ट्रांजिस्टर, क्लियर। तो आप देख सकते हैं जो ट्रांजिस्टर आपने कनेक्ट किया है वो किसके किसके बीच में कनेक्ट किया है, ये आपको दिखाना पड़ेगा। तो 1 2 4 0 के बीच में आपने ट्रांजिस्टर कनेक्ट किया है। ट्रांजिस्टर को भी तो बताना पड़ेगा कहाँ लगाए हो। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, फिर ये 4 हो गया, और ये 0 हो गया। तो ट्रांजिस्टर आपका यहाँ पे लगा है, आपको दिख रहा होगा, दिस इज योर ट्रांजिस्टर। 1 2 4 और 0 के बीच में हमारा ट्रांजिस्टर लगा है। 1 2 4 0 के बीच में ट्रांजिस्टर लगा है। ट्रांस ट्रांस का मतलब है ट्रांजिस्टर, क्लियर। ट्रांजिस्टर ये आपका जो है 1 2 4 0 के बीच में लगा हुआ है। डॉट मॉडल फाइल, ये मॉडल फाइल हमें देनी पड़ती है रन कराने के लिए, ठीक है। दिस इज योर इंपॉर्टेंट पार्ट। ये कमांड आपके डायरेक्टली ऐसे ही लिखना है आपको, डॉट मॉडल क्यू ट्रांस एनपीएन। ट्रांजिस्टर आपका कौन सा है? एनपीएन। ये भी बताना पड़ेगा एनपीएन है या पीएनपी ट्रांजिस्टर है, क्लियर। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट हमारा कोडिंग का पार्ट है, दैट इज दिस, क्लियर। क्योंकि हम ट्रांजिएंट और डीसी एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो हमने डॉट ट्रान लिखा। ट्रान का मतलब है ट्रांजिएंट एनालिसिस, दोनों में निकालना ट्रांजिएंट और डीसी। तो डॉट ट्रान 1 नैनो सेकेंड से 15 नैनो सेकेंड जो हम एनालिसिस कर रहे हैं। ट्रांजिएंट एनालिसिस होता है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मींस यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग द आउटपुट बिहेवियर विथ रेस्पेक्ट टू इनपुट, क्लियर, फॉर अ गिवन टाइम स्लॉट, क्लियर। सो या ये कह सकते हैं टाइम के साथ अगर आउटपुट रिस्पॉन्स चेंज होता है उसको हम ट्रांजिएंट एनालिसिस कहते हैं, क्लियर। सो हम लोग जो टाइम पीरियड ले रहे हैं वो 1 नैनो सेकेंड से कितने तक का ले रहे हैं? अराउंड 15 नैनो सेकेंड तक, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? दिस इज योर ट्रांजिएंट ट्रांजिएंट एनालिसिस, ट्रांस, क्लियर। अब देखिए इसके बाद आता है डीसी। डीसी एनालिसिस भी हमको करनी है, तो हमने नीचे देखिए डॉट डीसी भी दिया हुआ है, ठीक है। डॉट डीसी दिख रहा है सभी को ये? हेलो हेलो, आवाज आ रही यस है सर, बेटा दिख रहा सभी? है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है सर। ये समझ में आ रहा है जो मैं समझा रहा हूँ? यस सर। क्योंकि समझ में आएगा तो हमें एक्चुअली जो है सारी सर्किट्स ऐसे ही सॉल्व करनी है, ये भी ध्यान रखिएगा। जो मतलब जितनी भी सर्किट्स हैं हमारी, जो पी स्पाइस में हम जो वर्क करते हैं ना, वो ऐसे ही करते हैं, ठीक है ना। तो आपको मतलब कुछ ऐसे ही समझना है इसको, ठीक है। अब आप अगर बात करेंगे ये डॉट डीसी आपका डीसी एनालिसिस के लिए है, क्लियर। तो ये देख सकते हैं आप, जो हमने वीबी, वीबी क्या है? बेस टू एमिटर वोल्टेज है, जो कि इनपुट वोल्टेज है, क्योंकि ये बेस टर्मिनल है, ये एमिटर टर्मिनल है, इसके बीच में हम इनपुट यहाँ पे वीबी जो है हमारा, वो कहाँ कनेक्टेड है? वीबी आप देख सकते हैं, हेलो
दिस इज योर VBE बेसिकली, क्लियर। तो ये जो हमारा ये जो पोर्शन है, ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये हमारा VBE हो गया, दैट इज बेस एमिटर, क्लियर। ठीक है ना। ये हमारा वेरी करेगा कितने से कितने के बीच में, 0 से लेके 5 के बीच में। यही हमारा एक तरह से इनपुट वोल्टेज प्रोवाइड करे, मतलब जो भी हम इनपुट पे देंगे वो हमारा VBE के थ्रू ही ट्रांजिस्टर को एज ए इनपुट मिलेगा, क्लियर। सो जो VBE है दैट इज बेस एमिटर वोल्टेज मींस VB माइनस V, दैट विल वेरी फ्रॉम 0 to 5 वोल्ट, क्लियर, एग्जैक्टली। इसके बाद जो है डॉट प्रोब डॉट एंड, ये हमारा क्या है, ये एंड करेंगे जब आप प्रोग्राम आपका एंड होगा तो आप इसके लिए फिर लास्ट में डॉट एंड कमांड यूज करेंगे, ठीक है। डॉट प्रोब डॉट एंड, यहाँ पे आपका जाके ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अब हम इसकी अगर सिमुलेशन देखें, वी टॉक अबाउट द सिमुलेशन पार्ट, ठीक है। ये देखिए ये आपका सिमुलेशन है, डीसी एनालिसिस है, दिस इज योर डीसी एनालिसिस। डीसी एनालिसिस में आप देख सकते हैं कि कैसे हमारा प्लॉट चेंज हो रहा है, ठीक है। डीसी एनालिसिस मैं इसको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो ट्रांजिएंट एनालिसिस होगी वो टाइम के रेस्पेक्ट में होगी, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे देखिए एक एक्सिस आपका जो है ये एक तरह से इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका इनपुट वोल्टेज एक्सिस है और ये आपका आउटपुट वोल्टेज एक्सिस है। इसको हम लोग वोल्टेज ट्रांसफर कर्व भी कहते हैं, ठीक है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। इसको VTC प्लॉट भी कह सकते हैं, वोल्टेज ट्रांसफर कर्व, क्योंकि जो वोल्टेज ट्रांसफर कर्व है इसका मीनिंग होता है द प्लॉट ड्रॉन बिटवीन आउटपुट वोल्टेज एंड इनपुट वोल्टेज, क्लियर। इनपुट वोल्टेज वो वोल्टेज है जो हम इनपुट पे दे रहे हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट में क्या चेंजेस आ रहा है, दैट इज व्हाट वोल्टेज ट्रांसफर कर्व, इसको VTC बोलते हैं, यहाँ मेंशन भी होगा नीचे, ठीक है। तो आपके ऑब्जेक्टिव में भी VTC लिखा हुआ था, आपको दिखा होगा, ठीक है। तो ये हमें VTC मतलब निकालना है, मतलब प्लॉट निकालना है, ठीक है ना, ठीक है। तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ सर्किट में ही, पहले मैं आपको सर्किट की वर्किंग भी बता देता हूँ। सर्किट की वर्किंग की अगर बात करेंगे तो अगर हम जैसे यहाँ इनपुट दे रहे हैं, आपको पता है अगर बेस पे आप इनपुट लो देंगे तो ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होगा, क्योंकि थ्रेशोल्ड वोल्टेज इज डिसाइडेड टू गेट ट्रांजिस्टर ऑन एट द इनपुट साइड, क्लियर। सो आपको इनपुट पे एक मिनिमम वोल्टेज देना पड़ता है जिस पे हमारा ट्रांजिस्टर ऑन होता है। सपोज आप एक हम 0 और 1 के टर्म में अगर हम बात करें, अगर आप इनपुट पे 0 वोल्टेज दे रहे हैं तो मीन्स बेस टर्मिनल आपका क्या है, इनएक्टिव है, आप उस पर कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रहे हो, क्लियर। सो आपका अगर आप VBE देखोगे तो VBE कितना हो जाएगा, अगर आप इनपुट 0 दोगे तो पहली बात वोल्टेज 0, इधर कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, ठीक है। V इज इक्वल टू IR होता है, V 0 कर दिया तो नो करंट विल बी देयर ऑन द इनपुट साइड। और VBE अगर आप निकालेंगे तो VBE क्या होगा, VB माइनस VE होगा, इज इट क्लियर। आप लोगों ने पढ़ा भी है। देखिए हमने क्या किया, इनपुट को 0 कर दिया। इनपुट 0 करने का मतलब क्या है, हमने इनपुट 0 कर दिया, मतलब अगर हम देखें तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि वी हैव जस्ट मेड द बेस टर्मिनल 0, कि इनपुट तो सीधे बेस से कनेक्टेड है ना, बेस को हमने 0 कर दिया, ये आपका इनपुट देखिए सीधे बेस से कनेक्टेड है ये, ठीक है। तो एक तरह से बेस वोल्टेज आपने 0 कर दिया। तो अगर हम VBE निकालेंगे तो VBE क्या होगा, VB माइनस V, ठीक है। और अगर VB 0 है तो 0 माइनस VE हो जाएगा, ये दैट इज व्हाट माइनस VE आ जाएगा ये। और एमीटर को भी आपने क्या किया हुआ है, ग्राउंड किया हुआ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। एमीटर भी ग्राउंड है तो इसका मतलब एमीटर वोल्टेज भी क्या है, 0। इसका मतलब VBE क्या हो गया, 0 वोल्ट हो गया। आर यू गेटिंग, हेलो। VBE 0 हो गया तो मतलब बेस और एमीटर के बीच का वोल्टेज जो आपको यहाँ पे मिल रहा है वो क्या हो गया, 0 हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा सभी को, हेलो। Yes, sir. ठीक है, VBE 0 हो गया ना, क्योंकि इनपुट अगर आपने 0 दिया, क्योंकि हम इनपुट 0 दे रहे थे, 0 के अकॉर्डिंग हमने देखा कि हमारा VBE 0 आ गया, बेस एमीटर के बीच का, तो वो अगर 0 हो गया तो मींस ट्रांजिस्टर ऑफ स्टेट में चला गया या कट ऑफ स्टेट में चला गया। ट्रांजिस्टर अगर कट ऑफ स्टेट में चला गया मतलब ट्रांजिस्टर ऑन ही नहीं हुआ तुम्हारा, ठीक है ना। तो ट्रांजिस्टर ऑन नहीं हुआ तो क्या होगा, जब ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होगा तो ये नीचे का पार्ट तो आपका काम ही नहीं करेगा यहाँ से नीचे, क्योंकि ये तो ट्रांजिस्टर ऑन नहीं हुआ।
तो ऑन नहीं हुआ तो जो भी ऊपर का पोर्शन है वो ऊपर ही रहेगा, नीचे कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि नीचे तो ग्राउंड है फिर। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर के थ्रू कुछ नहीं जा पाएगा क्योंकि ट्रांजिस्टर ऑफ स्टेट में है। तो अब ये आउटपुट कहाँ से मिलेगा? आउटपुट आपको सीधे यहाँ से पाथ मिल जाएगा, यहाँ से। तो VCC से पाथ ले लेगा, नीचे की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि हमेशा आपको पता होगा लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है करंट। ठीक है, तो यहाँ से ये फॉलो करेगा पाथ। तो ये देखिए यहाँ VCC हमने दिया है 5 वोल्ट, क्योंकि हमें पता है कि हम मैक्सिमम सप्लाई 5 वोल्ट दे रहे हैं। तो 5 वोल्ट आपका यहाँ से होते हुए आउटपुट पे आ जाएगा। तो आउटपुट कितना मिल जाएगा? 5 वोल्ट। क्लियर? आउटपुट कितना मिल जाएगा बेटा? 5 वोल्ट मिल जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, अब ये 5 वोल्ट यहाँ स्टोर रहेगा, क्योंकि अभी हमने बताया ना यहाँ एक हमने लोड कैपेसिटेंस लगाया हुआ था। ये CL की वजह से ये चार्ज को स्टोर करता है। तो ये क्या करेगा, इस वोल्टेज को स्टोर रखेगा, डिस्चार्ज नहीं होगा अलग से। ठीक है, ये चार्ज हमारा स्टोर रहेगा। ठीक है ना, या ये वोल्टेज हमारा स्टोर रहेगा। ठीक है, अप टू नेक्स्ट साइकिल। अब नेक्स्ट साइकिल क्या है? व्हाट इज योर नेक्स्ट साइकिल? पहले तो हमने 0 दिया था इनपुट पे। देखिए अब यहाँ हमने पहले 0 दिया था ना। अब नेक्स्ट साइकिल में क्या आएगा? हाई आएगा। तो 0 से फिर अब हम कहाँ जाएंगे? 5 वोल्ट मीन्स हाई पे जाएंगे। तो हाई जब देंगे तो यहाँ पे 5 वोल्ट जब आप देंगे, जब आप इनपुट 5 वोल्ट देंगे तो क्या होगा? 0 से 0 पे हमने आउटपुट देखा, हमें 5 वोल्ट मिला, तो मतलब इनपुट लो दिया, आउटपुट हाई मिला। अब सेकेंड स्टेज में क्या होगा? अब हमने इनपुट को 5 वोल्ट दे दिया। 5 वोल्ट देंगे तो मतलब बेस वोल्टेज हमारा 5 वोल्ट हो गया। कितना हो गया बेस वोल्टेज? बताइए। अब हमारा बेस वोल्टेज हो गया 5 वोल्ट। ठीक है, तो VBE कितना हो जाएगा? VBE आप निकालेंगे तो कितना आएगा? बताइए। VBE इज इक्वल टू VB माइनस V। VB आपका 5 है और VE आपको 0 ही है, क्योंकि एमिटर वोल्टेज डायरेक्टली ग्राउंड है। तो VE तो 0 है, तो आउट यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा? 5 वोल्ट। इसका मतलब इनपुट हम कितना दे रहे हैं? VB बेस एमिटर वोल्टेज 5 वोल्ट दे रहे हैं। तो अगर अब हम इनपुट अगर हम 5 वोल्ट दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा ट्रांजिस्टर क्या होगा? ऑन हो जाएगा। तो जब ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा तो पहले जो हमारा आउटपुट था यहाँ पे, ये 5 वोल्ट अभी स्टोर्ड था जो पहले वाले से मिला था, ये हमारा 0 तो हुआ नहीं, 5 वोल्ट स्टोर्ड है आउटपुट। अब ये ट्रांजिस्टर जब ऑन हो गया तो ये क्या करेगा? नीचे से पाथ लेगा ट्रांजिस्टर के थ्रू। ट्रांजिस्टर ऑन हो गया तो नीचे से पाथ ले लेगा, नीचे से पाथ लेगा तो जो भी यहाँ आउटपुट हाई वोल्टेज था, ये नीचे कहाँ चला जाएगा? ग्राउंड की तरफ। तो ग्राउंड में वोल्टेज कितना? 0। तो 5 वोल्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? 0 में। पाथ नीचे की तरफ ले लेगा तो वोल्टेज 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आउटपुट कितना हो जाएगा? 0 वोल्ट। बात समझ में आ रही है? हेलो, आप लोग को समझ में आ रहा है ये जो मैं बता रहा हूँ? क्लास हेलो, क्लास आवाज आ रही है? कोई रिस्पांस करेगा? यस सर, आवाज आ रही है। समझ में आ रहा है ये जो भी बताया हूँ? यस हाँ सर। सर आ रहा है। इन्वर्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? जब 0 वोल्ट दे रहे हैं तो 5 मिल रहा है, 5 दे रहे हैं तो 0 मिल रहा है, कैसे मिल रहा है? बीजेटी इन्वर्टर। समझ में आ आ गया गया सर। ये? यस सर। और यही चीज अब आप अगर देखेंगे तो यही चीज हमारी नीचे, अगर हम इसके प्लॉट की बात करेंगे, DC एनालिसिस कोडिंग मैंने समझा दिया आपको, इसकी वर्किंग समझा दिया। अब आप अगर इसके प्लॉट को देखेंगे कि ये आपका प्लॉट है। ठीक है, इस प्लॉट को अगर आप देखेंगे कि DC एनालिसिस है इसकी, तो एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं? इनपुट और आउटपुट के बीच प्लॉट कर रहे हैं। इसको हम ट्रांजिएंट वोल्टेज ट्रांसफर कर्व भी बोलते हैं, DC एनालिसिस को। ठीक है, ये आपका आउटपुट एक्सिस है, ये आपका इनपुट एक्सिस है। ठीक है, यही आपका प्लॉट आएगा जब आप ऐसे ऐसे कोडिंग वोडिंग करेंगे और उसको रन कराएंगे, सिमुलेट कराएंगे, DC एनालिसिस देखेंगे, तो इसका प्लॉट ऐसा ही आपको दिखेगा। ठीक है, पहले बच्चे किए हैं लैब में सेम कोडिंग से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए स्टार्टिंग में यहाँ पे आप देखेंगे कि जब इनपुट हमारा या ये कह सकते हैं 0 से स्टार्ट हुआ अप टू सर्टेन मिनिमम वोल्टेज लेवल, यहाँ तक देखिए मिनिमम वोल्टेज लेवल था यहाँ पे, बल्कि कह सकते हैं यहाँ यहाँ तक
जब ये ग्राफ जब तक डाउन नहीं हुआ था, यहाँ तक देखिए इस पॉइंट तक हमारा पीक वैल्यू मिल रही है हमको यहाँ पे, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, ये हमें 5 वोल्ट मिल रहा है जब हमारा इनपुट लो है, ठीक है। इनपुट लो है, अब हम इनपुट को थोड़ा और बढ़ाएंगे। इनपुट बढ़ाने का मतलब आपको इधर चलना पड़ेगा, ठीक है। इनपुट बढ़ाना शुरू किया आपने, 0 से 1 गए, 2 गए, 3 गए, 4 गए, 5 गए, जैसे भी, ठीक है। तो देखिए आप जब बढ़ते गए इधर की तरफ 5 वोल्ट तक, तो आप देख सकते हैं जब इनपुट बढ़ेगा तो आउटपुट लो होता चला जा रहा है, क्लियर। आउटपुट यहाँ लो हो रहा है, देखिए, ठीक है। तो अगर इनपुट हाई है तो आउटपुट लो है, आउटपुट हाई है तो इनपुट लो है, क्लियर। कहने का मतलब ये है। यहाँ पे अब आपको ये फेज अगर मॉनिटर करना चाहें तो आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं। इसमें आपका सैचुरेशन स्टेज भी आ रही है, इसमें आपका लीनियर रीजन भी आएगा, ठीक है, और इसमें आपका कट ऑफ रीजन भी आएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे इस पॉइंट के बाद अगर आप देखेंगे, ये आपका सैचुरेशन रीजन, ये तो पहली बात तो ये सैचुरेशन रीजन, यहाँ करंट ऑलमोस्ट सैचुरेट हो गई, ठीक है, या वोल्टेज, सॉरी करंट नहीं, वोल्टेज कह सकते हैं आप, सैचुरेट हो गई, ठीक है। और इस रीजन में बात करेंगे तो एक रीजन ऐसा भी आएगा जहाँ पे इनपुट और आउटपुट वोल्टेज ऑलमोस्ट बराबर हो जाएंगे, यहाँ के आस, ये जहाँ लाइन ही कट कर रही है, यहाँ इनपुट और आउटपुट दोनों वोल्टेज ऑलमोस्ट सेम होंगे इस पॉइंट पे। वी इन इज इक्वल टू वी आउट, यू कैन से क्लियर इस पॉइंट पे, ठीक है। एक्टिव मोड में भी यहाँ ट्रांजिस्टर किस रीजन में है, एक्टिव मोड में भी आपको दिखेगा, ठीक है, सैचुरेशन मोड में भी दिखेगा, और वो भी कंडीशन आ जाएगी जहाँ पे दोनों बराबर भी होंगे, ठीक है ना। ये प्लॉट आपके 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ये जो नेक्स्ट प्लॉट है ये ट्रांजिएंट एनालिसिस है, जो कि टाइम के साथ हमारा प्लॉट वेरी कर रहा है। देखिए ये आपका तो आउटपुट वोल्टेज हो गया, और जो एक्स एक्सिस है आपकी टाइम की एक्सिस है, ये देखिए। तभी मैंने बोला ना ये टाइम के साथ वेरी करता है। ट्रांजिएंट एनालिसिस की मतलब ही यही है कि द रिस्पॉन्स वेरीज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये देख सकते हैं आप, ये टाइम एक्सिस है, ये आपका आउटपुट है, क्लियर। तो एज वी वेरी द टाइम, time in the respect 0 volt, 2 nanosecond, 4 nanosecond, 6 nanosecond, this is your delay time, clear. You may observe your characteristics या behavior of the output, clear, ठीक है, getting my point, Yes, sir. ठीक है। तो यही आपको एग्जैक्टली ड्रॉ करना है इसमें, जो मैं बताना चाह रहा था आपको। बाकी यही मैनुअल है आपकी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की। इतना पार्ट आपको फिलहाल तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का लिखना ही है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं है, आपको दिख ही गया होगा कितना कंटेंट है। मेनली कोडिंग पार्ट है, और ये आप अपने ग्राफ शीट पे ऐसे बना सकते हैं, बनाएंगे, ठीक है, क्लियर, ठीक है बेटा। और यस इसकी सर। 2 सिमुलेशन वीडियोस हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यस सर। ये हमने एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट हमने लास्ट टर्म पे भी आप लोगों को समझाया था, बट मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा बच्चों ने, क्योंकि उस समय हमने आपको और भी एक्सपेरिमेंट की ब्रीफिंग करी हुई थी। आज हमने इसको थोड़ा और डिटेल में आपको समझाया है, ठीक है। और इसकी वीडियो भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, जो मैं यूट्यूब की वीडियोस की बात कर रहा था, सिमुलेशन वाली 8-8 7-8 8-8 मिनट की है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मीटिंग टाइम ओवर हो रहा है, तो आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लीजिए एक बार, ठीक है। मीटिंग टाइम ओवर होने जा रहा है, तो आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद ही हम वीडियो दिखा पाएंगे, क्योंकि लेस देन 1 मिनट बचा है मीटिंग टाइम। ठीक है बेटा, सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए दोबारा, ठीक है, क्योंकि अब ये टाइम आई थिंक ओवर होने वाला है। अभी शेयर करेंगे तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। जस्ट वेट।